اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ اور سوشل میڈیا کے محترم سامعین و ناظرین، تحقیق المسائل کے حوالے سے آج ہمارا 18واں عنوان ہے، اور وہ عنوان توہین رسالت کی سزا کے حوالے سے ہے۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ توہین رسالت کے اوپر جو اسلام میں قتل کی سزا رکھی گئی ہے تو یہ ظالمانہ سزا ہے۔ اور دور حاضر میں بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ سزا ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر یہ سزا موجود ہے، اور پھر اس پر بات کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سزا کیوں رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہونی چاہیے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور جو زمین میں فساد کے لیے دوڑتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، اور یصلبوا، یا ان کو سولی دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، اور ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر ان کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہوں نے یہ جانا نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرے، فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بڑی رسوائی ہے۔ پھر سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا، قل، اے نبی آپ کہیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کی ہنسی اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ تو یعنی جو سچے دل سے تائب ہو جائیں گے تو ان کو تو معافی مل جائے گی، لیکن جو تائب نہیں ہوں گے تو ان کے لیے عذاب ہوگا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
अल्लाह ने उन पर लानत की है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार किया है। सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना शानियका हुवल अब्तर, कि तेरा जो दुश्मन है तो वही दुम कटा है, वही बेनामो निशान है। तो बहरहाल ये कुरान हकीम के मुख्तलिफ़ मकामात जिनमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई और उनकी हंसी उड़ाने के हवाला से अज़ाब अज़ीम का, अज़ाब अलीम का तज़किरा है। और ज़ाहिर बात है कि ये लफ्ज़ जो हैं ये कुफ़ार के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो ये इन चीज़ों का मुर्तकिब होगा तो वो गोया कि कुफ्र इख्तियार कर लेगा, और कुफ्र इख्तियार करना मुर्तद होकर तो उसकी सज़ा कत्ल, उसके मुतल्लिक़ मैं पहले बात कर चुका हुआ हूँ। बहरहाल तौहीन रिसालत के ऊपर कत्ल की सज़ा कुरान हकीम की आयात से साबित होती है। फिर जो मुआहिद ज़िम्मी है उसके हवाला से सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, व इन नकसू ऐमानहुम मिन बादि अहदिहिम व ताअनु फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र। बस अगर वो अपनी कस्में तोड़ देते हैं अपने अहद करने के बाद और तुम्हारे दीन में तान करते हैं तो कुफ्र के आइम्मा से लड़ाई करो। इन्नहुम ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहून, क्योंकि अब उनकी कोई कस्मों का एतबार नहीं रहा, अगर शायद कि वो बाज आ जाए। तो यहाँ पर अगर मुआहिद ज़िम्मी भी जो है वो दीन के मुतल्लिक़ तान करने लग जाएं, अपने अहद की खिलाफ वर्जी कर लें, तो उनके लिए भी ये हुक्म हो गया कि उनसे लड़ाई करनी है। अहादीस मुबारका के अंदर बात और ज़्यादा निखर के सामने आती है। वहाँ पर वाज़े तौर पर जो है तौहीन रिसालत के ऊपर कत्ल की सज़ा जो है उसका ज़िक्र मौजूद है, और उसके बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो कुतुब अहादीस के अंदर ज़िक्र हुए हैं। सुनन नबी दाऊद के अंदर रिवायत है कि एक नाबीना शख्स था, तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देने वाली एक यहूदिया औरत को कत्ल कर दिया। ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने उसका खून रायगां करार दिया, यानी आपने ये फरमाया कि उसका कोई बदला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो यहूदिया औरत जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दे रही थी। तो फिर उसको कत्ल किए जाने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसास में उस नाबीना शख्स को कत्ल नहीं करवाया। सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि एक सहाबी ने अपनी उम्मे वलद लोंडी के, जिससे उसके दो खूबसूरत बच्चे भी थे, तो उस लोंडी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देने की वजह से कत्ल कर दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खून को भी रायगां करार दिया, उसके खून को भी रायगां करार दिया, और उनको जो है वो किसास में कत्ल नहीं करवाया। मुत्तफ़क़ अलैह रवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर रवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हिजब करने वाला काब बिन अशरफ यहूदी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसके कत्ल का जो है वो हुक्म दिया, और मोहम्मद बिन मसलमा ने जाके उसे कत्ल किया। बुखारी के अंदर ये रवायत भी मौजूद है कि अबू राफ़े यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो है उससे सितम करने वाला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक ने जाके उसको कत्ल किया। सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर रिवायत मौजूद है हज़रत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबू सरा के मुतल्लिक़ कि पहले वो मुसलमान थे, फिर दरमियान में मुर्तद हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के भी मुर्तकिब हो गए। लेकिन फ़तह मक्का के रोज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके रज़ाई भाई थे, तो अब्दुल्ला बिन साद उनके पास छुप गए।
تو حضرت عثمان غنی نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے تو ان کے لیے جو ہے وہ بیعت کی درخواست کی۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو اپنی پناہ میں لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی درخواست کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کے اظہار کے لیے 3 دفعہ بیعت سے انکار فرمایا۔ لیکن پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت قبول کر لی۔ تو جس وقت یہ چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام جو موجود تھے تو ان سے یہ بات کہی کہ جس وقت میں بیعت سے انکار کر رہا تھا تو اس وقت تم میں سے کسی نے اس کو اٹھ کے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو آپ کو اشارہ کر دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس طرح خفیہ اشارے کرنا یہ نبی کی ذات کے لیے زیب نہیں ہے، تو اس لیے اشارہ تو میں نے نہیں کیا۔ بہرحال چونکہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا ہے، تو اس لیے ان کی صحابیت جو ہے وہ بن جاتی ہے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن نسائی کے اندر روایت ہے عبداللہ بن خطل مرتد ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کر رہا تھا، اور وہ حجب لکھتا تھا اور اس کی 2 کنیزیں وہ اس کی لکھی ہوئی حجب گایا کرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کنیزوں کے قتل کا حکم دیا، لیکن ایک کنیز جو ہے پھر وہ مسلمان ہو گئی اور اس کو پھر امان دے دی گئی، لیکن دوسری کنیز جو ہے اس کو قتل کیا گیا۔ سنن نسائی کے اندر ہی روایت موجود ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن چند نام آپ نے لے دیے کہ ان کو معاف نہیں کرنا۔ ان کے اندر یہ عبداللہ بن خطل کا نام بھی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے اطلاع دی کہ عبداللہ بن خطل جو ہے وہ کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کے اس کو قتل کیا۔ اس کے 3 جرائم تھے جو کہ تینوں قتل کا تقاضا کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ جس وقت وہ پہلے اسلام میں تھا، مرتد نہیں ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقہ کے مال کے اوپر مامور کیا اور اس کو ایک ساتھی بھی معاونت کے لیے دیا۔ تو اس نے کوئی جھگڑا ہو گیا اپنے ساتھی سے، تو اس سے اپنے ساتھی کو قتل کیا، تو قتل کے بدلے میں قصاص میں بھی قتل اس کا بنتا تھا۔ پھر وہ مرتد بھی ہو گیا تو ارتداد کی سزا بھی قتل ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بھی کرنے لگ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گستاخی جو ہے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے تقاضا کر رہی تھی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ بنو ختمہ کی ایک عورت اسماء بنت مروان، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق توہین آمیز اشعار کہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اس کی اپنی قوم کے ایک صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ سیرت ابن حشام میں اور سیرت الحلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بنو عمر بن عوف کا بوڑھا یہودی تھا ابو افق، تو اشعار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، تو نبی وسلم کے حکم پر حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ الدیات لابن ابی عاصم کے اندر روایت ہے کہ حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی تھی، تو انہوں نے اپنی اس بہن کو نبی وسلم کی توہین کی وجہ سے قتل کر دیا، تو نبی وسلم نے اس کا خون رائے گاہ قرار دیا، آپ نے قصاص میں حضرت عمیر کو قتل نہیں کروایا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس سے کون نپٹے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کو قتل کیا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہی ایک اور روایت ہے
कि एक औरत के तौहीन करने पर नबी सल्लल्लाहु के ईमा पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कत्ल किया। अस्सारिमुल मसलूल के अंदर रिवायत है कि हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे रिवायत है, मुरसल रिवायत, कि वो कहते हैं कि तौहीन रिसालत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न ज़बरी के कत्ल करवाने का हुक्म दिया था। सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर रिवायत है कि हज़रत अबू बरज़ा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा। तो मैंने, हज़रत अबू बरज़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि क्या मैं इसको कत्ल न कर दूँ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठ के अंदर चले गए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक बंदा भेज कर मुझे अंदर बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम क्या कह रहे थे। मैंने दोबारा इजहार किया कि वो आपकी तौहीन कर रहा था, तो मैं इजाज़त मांग रहा था कि मैं उसको कत्ल कर दूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इजाज़त दे देता तो क्या तुम वाकई कत्ल कर देते? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं कत्ल कर देता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि नहीं, ये चीज़ जो है ये सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हो सकती है कि उनकी तौहीन के ऊपर कत्ल किया जाए। तो बहरहाल ये अहादीस मुबारका के अंदर काफ़ी सारे वाक़यात जो हैं वो मिलते हैं। अगरचे बाज़ रिवायात की सनद जो है उसके ऊपर ये कुछ इश्काल वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल कसरत बहरहाल अहादीस की मौजूद है। फ़ुक़हा के भी अक़वाल मौजूद हैं कि फ़ुक़हा भी तौहीन रिसालत के ऊपर कत्ल का ही फतवा देते हैं। काजी इयाज़ मालकी वो कहते हैं कि वह हाज़ा कुल्लुहु इजमा मिन सहाबती व इम्मतिल फतवा मिन लदुन सहाबत रिज़वानुल्लाह अलैहिम इला हलुम जर्र, कि इस सारे के ऊपर इजमा है सहाबा का और फतवा देने वाले इम्मा का सहाबा के दौर से लेकर आगे तक। वला नालमु खिलाफन फ़ी इस्तिबाहत दमिही, और हम उसके खून के मबा होने के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं जानते। यानी साबिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला है। बैना उलमाइल अमसार व सल्फिल उम्मत, शहरों के उलमा के दरमियान और उम्मत के सलफ़ के दरमियान। वक़्त ज़कर गैर वाहिदिन अल इजमा अला क़त्लिही व तकफ़ीरिही, और कई एक से ये इजमा नकल किया गया है उसके कत्ल पर भी और उसके कुफर पर भी। काजी इयाज़ मालकी से ही ये भी है कि उन्होंने फरमाया कि इजमातुल उम्मत अला क़त्ल मुतनक्किसिही मिनल मुस्लिमीन वस्साबिही, कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है या आपको गाली देता है मुसलमानों में से, तो उम्मत का उसके कत्ल पर इत्तिफाक है। अच्छा जी, व कज़ालिका हुकिया अन गैर वाहिदिन अल इजमा अला क़त्लिही व तकफ़ीरिही, और कई एक से इसके ऊपर इजमा किया नकल किया गया है, हकायत किया गया है उसके कत्ल पर और उसकी तकफ़ीर पर। इब्ने मुंज़िर शाफ़ी वो कहते हैं कि अजमा अवाम अहलिल इल्म अन्नल हद्दा मनसब्बर नबी अल-क़त्ल, के अहले इल्म अवाम अहले इल्म यानी आम अहले इल्म का इजमा है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देगा तो उसकी हद जो है वो कत्ल है। वमिमन क़ालहु मालिक वल्लैस व अहमद व इसहाक़ व मज़हब शाफ़ी, और जिसने इस बात को कहा है तो उनमें से मालिक हैं, लैस हैं, अहमद हैं, इसहाक़ है और इमाम शाफ़ी का भी यही मज़हब है। अबू बकर अल फ़ारिस ये शाफ़ी वो कहते हैं कि अजमल मुस्लिमून अला अन्न हद्द मन सब्बल नबी अल क़त्ल, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है उसकी हद जो है वो कत्ल है। इसहाक़ बिन राहवे कहते हैं अजमल मुस्लिमून अला अन्न मन सब्बल्लाह व सब्ब रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों का इजमा है कि जिसने अल्लाह को गाली दी या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, और दफ़ा शैअम मिम्मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, या उसने किसी ऐसी चीज़ को दूर किया कि जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नाज़िल किया है, और क़तल नबिय्यन मिन अंबियाइल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, या जिसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नबियों में से किसी नबी को कत्ल किया, तन्नहु काफ़िरुन बिज़ालिका, तो ये काम करने की वजह से वो काफिर होगा। व इन काना मुक़िर्रन बिकुल्लि मा अंज़लल्लाह, अगरचे जो कुछ भी अल्लाह ने नाज़िल किया वो उसका इकरार भी करने वाला हो तो फिर भी इन कामों की वजह से वो काफिर हो जाएगा।
अच्छा जी, मोहम्मद बिन सहनून कहते हैं कि अजमल उलमा न शातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुंतकिस लहू काफिरुन, और कि जो नबी सल्लम को गाली देने वाला है या आपकी तौहीन करने वाला है तो वो काफिर है। वल वईद जा अलैहि बिअज़ाबिल्लाहि लहू, और अल्लाह के अज़ाब की उसके लिए वईद आई है। वह हुक्मुहु इंदल उम्मतिल क़त्ल, और उम्मत के यहाँ उसका हुक्म कत्ल का है। वमन शक्का फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबिही कुफ़िरा, और जो उसके कुफर और उसके अज़ाब के अंदर शक करे तो उसकी भी तकफ़ीर की जाएगी। इमाम ख़ताबी शाफ़ी कहते हैं ला आलम अहदुम मिनल मुस्लिमीन इख्तलफ़ फ़ी वजूब क़त्लिही, मैं मुसलमानों में से किसी को भी नहीं जानता कि उसने उसके कत्ल के अंदर इख्तिलाफ़ किया हो। वलाकिन इज़ा कान साबु ज़िम्मियन फ़क़द इख्तलफ़ू फ़ीही, हाल बता जिस वक़्त गालियाँ देने वाला कोई ज़िम्मी हो तो इसके अंदर तो फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है। फ़क़ाल मालिक इब्न अनस, तो मालिक इब्न अनस ने कहा मन शतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल यहूद वन नसारा क़ुतिला इल्ला अन युस्लिमा, कि जो गाली दे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद में से या और ईसाइयों में से, तो उसको कत्ल किया जाएगा मगर ये कि वो इस्लाम कबूल कर ले। वकज़ालिका क़ाल अहमद इब्न हम्बल, और अहमद इब्न हम्बल ने भी ऐसा ही कहा। वक़ाल शाफ़ी, और इमाम शाफ़ी ने कहा युक़्तलु ज़िम्मिय्यु इज़ा सब्बन नबिय्या व तबर्रा मिन्हु ज़िम्मा, कि जिस वक़्त ज़िम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे तो उसको कत्ल किया जाएगा और उसका ज़िम्मा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वह इहतज्जा फ़ी ज़ालिक बिख़बर काब इब्न अशरफ, और उन्होंने इस मामले में काब बिन अशरफ की बात को हुज्जत बनाया है। अच्छा जी, वह हुकिया अन अबी हनीफ़ा था, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से ये हकायत किया गया है कि अन्नहु काला, कि उन्होंने ये फरमाया कि ला युक़्तलु ज़िम्मु बिशतमिन नबी, कि ज़िम्मी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने की वजह से कत्ल नहीं किया जाएगा। माहुम अलैहि मिन अश्शिर्क आज़म, क्योंकि जिसके ऊपर वो पहले मौजूद है वो शिरक से भी बड़ी चीज़ है। जो शिरक वाली जो बड़ी जो चीज़ है जिसके ऊपर वो पहले मौजूद है तो वो बड़ी चीज़ है। काला अच्छा जी, काज़ी अबू बकर जस्सास जो हैं वो कहते हैं, ये हनफी आलिम हैं, कि वला खिलाफ़ बैनल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों में इस चीज़ में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि इन्नमन कसद नबी बिज़ालिका फ़हुव मिम्मन यंतहिलुल इस्लाम, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का कसद करता है तो वो सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करने वाला है। वन्नहु मुर्तद्दुन, और वो मुर्तद है। यस्तहिकुल क़त्ल, और वो कत्ल का मुस्तहिक है। फतावा शामी के अंदर है वफ़िल इश्बाह, कि इश्बाह के अंदर है कि ला तुसिहु रिद्दतु सकराने इल्ला रिद्दतु बिसब्बिन नबी, कि जो नशे में हो तो उसका मुर्तद होने का कोई एतबार नहीं है, लेकिन अगर वो मुर्तद होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने की शक्ल में फ़इन्नहु युक़्तलु वला युफ़ा अन्हु, तो उसको तो कत्ल किया जाएगा, उसको माफ़ी नहीं होगी। इमाम शौकानी कहते हैं व नकल अबू बकर अल-फ़ारिस अहद अइम्मत शाफ़िय्या, कि अबू बकर अल-फ़ारिस जो कि शाफ़ी आइम्मा में से एक हैं, उन्होंने नकल किया फ़ी किताबुल इज्मा में कि अन्ना मन सब्बन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा अक़ज़फ़ा सरी, कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरी तौर पर तहमत लगाते हुए गाली दी, कुफ़िरा, तो उसकी तकफ़ीर की जाएगी बेइत्तिफ़ाक़िल उलमाए, उलमा के इत्तिफ़ाक़ से। फ़लो ताबा लम यसकुत अनहुल क़त्ल, अगर वो तौबा भी करता है तो उससे कत्ल साक़त नहीं होता। लिअन्न हद्द क़ज़्फ़िही अल क़त्ल, क्योंकि तहमत लगाने की हद जो है वो कत्ल है। वह हद्दुल क़ज़्फ़ि ला यसकुतु बित्तौबा, और कत्ल की जो हद है वो तौबा से साक़त नहीं होती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि कुल्लु मन शतमन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तनक्कसहु मुस्लिमन काना औ काफिरन फ़अलैहिल क़त्ल, कि जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, खा वो मुस्लिम है या काफिर है, तो उसको कत्ल किया जाएगा। व अरा अन युक़्तला वला युस्तताबा, और वो कहते हैं कि मेरी राय ये है कि उसको कत्ल किया जाएगा, उससे तौबा नहीं करवाई जाएगी। इमाम सिंधी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इन्न ज़िम्मिया इज़ा लम यकुफ़्फ़ लिसानहु अनिल्लाहि व रसूलिही, जब ज़िम्मी बंदा अपनी ज़ुबान न रोके अल्लाह और उसके रसूल से, फ़ला ज़िम्मत लहू, तो उसका ज़िम्मा नहीं रहता, फ़यहिल्लु क़त्लुहु, तो उसका कत्ल करना हलाल हो जाता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं
कि मन सब्बन नबिया मिन मुस्लिमिन और काफिरिन फ़इन्नहु याजिब क़त्लुहु हाज़ा मज़हब अहलिल इल्म, कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी खा वो मुस्लिम है या काफिर है तो उसका कत्ल वाजिब है। अहले इल्म का ये मज़हब है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ फतावा का मैंने जो है वो ज़िक्र किया है। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब अगर मुसलमान है तो सबके नज़दीक बिल इत्तिफाक उसको कत्ल किया जाएगा। अहनाफ भी तौहीन रिसालत के जो मुसलमान मुर्तकिब था तो उसको कत्ल की जो है ना वो फतवा देते हैं। वो कहते हैं, अहनाफ कहते हैं कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की तो वो मुर्तद हो गया, और मुर्तद की सज़ा जो है वो कत्ल है, तो ये हद के तहत आती है। और जो हद है उसका इस्बात जो होता है तो वो दो मर्द गवाहों से होता है। अगर दो मर्द गवाह ये गवाही देते हैं कि इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो फिर उसके ऊपर ये हद जो है वो जारी होगी मुर्तद होने की वजह से। अच्छा जी, अइम्मा सलासा का कहना ये है कि उसको तौबा का मौका तक भी नहीं दिया जाएगा, उसको कत्ल ही किया जाएगा। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो अलबत्ता इसके कायल हैं कि अगर मुसलमान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है तो उसको तौबा का मौका बदल दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करता है और कोई बंदा उसको कानून हाथ में लेते हुए कत्ल कर देता है, अगरचे ये आम लोगों को इजाज़त नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने ये काम कर दिया कि उसने उसको कत्ल कर दिया तो फिर अब देखा ये जाएगा कि जिसको उसने कत्ल किया है क्या वो वाकई तौहीन का मुर्तकिब था, क्या वो वाकई गुस्ताख था और वो मुर्तद था। तो अगर वो गुस्ताख और मुर्तद साबित हो जाए तो फिर उसको कत्ल करने वाले को किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसने चूँकि कानून अपने हाथ में लिया है तो किसासन कत्ल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन ताज़ीरी सज़ा जो है उसको तंबीह के तौर पर दी जाएगी। लेकिन अगर वो जिसको कत्ल किया गया है वो गुस्ताख और मुर्तद साबित ही ना हो तो फिर ये जिसने कानून अपने हाथ में लेके उसको कत्ल किया था तो फिर इसको किसास में कत्ल किया जाएगा। ये तो मुसलमान के मतलब हुक्म हो गया। और अगर ज़िम्मी जो है वो इर्तिकाब करता है तौहीन रिसालत का, अइम्मा सलासा तो फिर भी यही कहते हैं कि उसको भी कत्ल ही किया जाएगा। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक ज़िम्मी अगर इर्तिकाब करता है तौहीन रिसालत का तो उसके लिए हद नहीं होगी बल्कि उसके लिए ताज़ीर होगी। और हद जो होती है ना उसका इस बात तो सिर्फ मर्दों की गवाही से होता है, लेकिन ताज़ीर का इस बात जो है वो ख़वातीन की गवाही या दीगर ज़राए से भी हो सकता होता है। अलबत्ता अहनाफ ये ज़रूर कहते हैं कि अगर एक ज़िम्मी बार बार जो है वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो रहा है तो फिर उसको भी कत्ल किया जाएगा। अगर वो सिर्फ एक दफ़ा मुर्तकिब हुआ है तो फिर तो ताज़ीर होगी, लेकिन अगर वो बार बार मुर्तकिब हो रहा है तो फिर उसको कत्ल किया जाएगा। हत्ता कि अगर वो बार बार जो है वो मुर्तकिब हो रहा है तौहीन रिसालत का तो फिर वो बाद में इस्लाम कबूल करने का भी कह दे तो फिर भी कत्ल किया जाएगा। अच्छा जी, एक दफ़ा अगर उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया तो अहनाफ के नज़दीक कोई भी ताज़ीरी सज़ा दी जा सकती है और वो उसके जुर्म की नोयत के मुताबिक कत्ल तक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। लेकिन अगर एक मुल्क के अंदर, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर ये कानून बना दिया गया है कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को कत्ल किया जाएगा तो फिर जो है उसी कानून के मुताबिक कत्ल की सज़ा ही होगी, क्योंकि ताज़ीर में ये सज़ा तय की जा चुकी है। अगर एक ज़िम्मी ने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया और किसी ने कानून को अपने हाथ में लेकर उसको कत्ल कर दिया तो फिर यही देखा जाएगा कि जिस ज़िम्मी को कत्ल किया गया है क्या उसका जुर्म साबित है। अच्छा जी, और उस जुर्म भी साबित होने के बाद क्या उसको मौत की सज़ा जो है वो दी गई थी, वो सज़ा सुनाई गई थी। अगर ये साबित हो जाए कि उसका जुर्म साबित था और उसको मौत की सज़ा भी सुनाई जा चुकी थी तो फिर उसको
कत्ल करने वाले को किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन ताज़ीरी सज़ा जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर उसका जुर्म साबित नहीं, या फिर उसका जुर्म तो साबित हुआ लेकिन उसको मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई, तो फिर जो है उसको कत्ल करने वाले को किसासन कत्ल किया जाएगा। तो बहरहाल मुस्लिम मुर्तकिब जो है उसके लिए जो है वो ज़्यादा शिद्दत है कि उसको तो कत्ल ही किया जाएगा। ज़िम्मी के लिए जो है वो अगर एक दफ़ा मुर्तकिब होता है तो उसके लिए रिआयत अहनाफ के नज़दीक है कि उसको सिर्फ ताज़ीरी सज़ा दी जाए। हाल बत्ता कानून बन जाए कत्ल का तो फिर तो कत्ल किया जाएगा, लेकिन मुस्तकिल कानून जिस मुल्क में न बना हो तो फिर कोई भी ताज़ीरी सज़ा हो सकती है। लेकिन जो मुस्लिम मुर्तकिब है तो उसको कत्ल किया जाएगा। हाल बत्ता अहनाफ के नज़दीक उसको तौबा का मौका ज़रूर दिया जाएगा। ज़िम्मी के लिए जो ये रायत रखी गई है अहनाफ के नज़दीक, तो इसकी जो है मंतकी बुनियाद ये है कि ज़िम्मी जो है ये पहले ही कुफ्र और शिरक के ऊपर कायम है, और ये कुफ्र और शिरक जो है ये ख़ुद भी बहुत बड़े बड़े जराइम हैं। तो इतने बड़े जराइम के बावजूद उसको जिजिया लेकर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया हुआ है। तो जब उसको पहले ही बर्दाश्त किया जा रहा है, उसके जराइम के बावजूद उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, तो फिर अब मज़ीद कुफ्र में भी जो है उसकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ वाला मामला बन सकता है, गुंजाइश बन सकती है। अच्छा जी, और अमली तौर पर जो है वो मुस्लिम और ज़िम्मी का मामला तकरीबन एक जैसा इस अंदाज में बन जाता है कि मुस्लिम जो है अगर वो भी तौबा कर लेता है तो फिर तो अहनाफ के नज़दीक उसकी सज़ा भी माफ़ हो जाती है, और जो ज़िम्मी है तो वो भी अगर सिर्फ एक दफ़ा इर्तिकाब करता है, दोबारा इर्तिकाब नहीं करता, तो उसको भी जो है वो कत्ल की सज़ा नहीं दी जाती है अगर कानून न बना हुआ हो तो। लेकिन अगर मुस्लिम जो है वो तौबा नहीं करता तो फिर उसको कत्ल किया जाएगा। दूसरी तरफ ज़िम्मी जो है अगर वो बार बार इर्तिकाब करता है तो फिर उसको कत्ल किया जाएगा। तो इसलिए मामले की नोयत किसी हद तक जो है वो एक जैसी बन जाती है। कुरान और हदीस से भी ज़िम्मियों के लिए थोड़ी गुंजाइश जो है उसकी एक बुनियाद मिलती है कि यहूदी राइना का लफ्ज़ जो है वो बिगाड़ कर बोल रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सामु अलैका कह रहे थे, तो उसके बावजूद उनको कत्ल नहीं करवाया गया था। तो इसलिए ज़िम्मियों के लिए जो है वो गुंजाइश है वो कुरान और हदीस से भी साबित होती है और मंतकी तौर पर भी साबित होती है। अच्छा जी, अब ये जो सज़ा है कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को कत्ल किया जाएगा, तो इसके ऊपर कुछ इश्कालात और उनका जवाब। पहला इश्काल ये कि कुरान हकीम में कई अक़वाम का तज़किरा आया है। ऐसी अक़वाम भी गुज़री हैं कि जो अपने अंबिया के कत्ल के भी मुर्तकिब हुए, तो उन अंबिया के पैरोकारों को तो ये हुक्म नहीं दिया गया कि ये तौहीन करने वालों को जो है वो कत्ल करो। तो इसके जवाब में हम ये कहना चाहेंगे कि वो साबका शरीयतों का मामला था, और ये लाजम नहीं होता कि अगर साबका शरीयतों में तौहीन रिसालत की सज़ा नहीं है कत्ल तो अब भी ना बने। तो हमने शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करना है, और शरीयत मुहम्मदिया में बहरहाल सज़ा साबित है। एक और इश्काल ये पेश किया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले ताइफ ने इंतहाई अज़ियत दी थी और आपको लहूलुहान भी कर दिया था। तो ये तो तौहीन से भी ज़्यादा बड़ी बात है, जिस्मानी अज़ियत तक दी गई है। तो फरिश्ता आया था और उसने ये सवाल किया था कि क्या इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूं, तो लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं होने दिया था। तो अगर तौहीन रिसालत की सज़ा जो है वो कत्ल है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहाड़ गिराने का हुक्म दे देते। तो इसके जवाब में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये वाक़या मक्की दौर का है, और ये जो अहकाम नाज़िल हुए हैं जिनमें तौहीन रिसालत की सज़ा कत्ल होने का हुक्म है, तो ये भी मदनी दौर में नाज़िल हुआ है। और दूसरी बात ये कि मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात का है ना, तो ख़ुद आपको ये इख्तियार हासिल था कि आप मुआफ़ी दे सकते थे, लेकिन आपके बाद जो है ये किसी को इख्तियार नहीं है। अच्छा जी, एक और इश्काल ये भी पेश किया जाता है कि सुहेल बिन अमर
ये बाद में तो मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन इस्लाम से पहले हुदैबिया के मौका पर इन्होंने जो है वो गुस्ताखी का इर्तिकाब किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ बढ़ाया था। और अब्दुल्ला बिन उबई जो कि रईसुल मुनाफिकीन है, तो उसने ग़ज़वे बनी मुस्तलक के मौका पर जो है वो काफ़ी गुस्ताखी का इर्तिकाब किया था और उसने कहा था कि मदीना पहुंचकर इज़्ज़त वाले ज़लील लोगों को निकाल देंगे। तो इतनी बड़ी गुस्ताखियों के बावजूद इनको कत्ल नहीं करवाया गया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मामला चूँकि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात का था और ख़ुद आपको मुआफ़ी का इख्तियार था, तो आपने माफ़ कर दिया। और आप चूँकि अल्लाह के नबी हैं और साहिब हिकमत हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि किसको कत्ल करने में हिकमत है और किसको जो है वो छोड़ने में हिकमत है। ये अगर चंद एक वाक़यात ऐसे हैं कि जहाँ कत्ल नहीं करवाया गया, तो बहुत सारे वाक़यात वो मैं पहले अहादीस में से ज़िक्र कर चुका हूँ कि जहाँ कत्ल करवाया भी गया है। अच्छा जी, अब आखिर पे हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि क्या ये सज़ा जो है ये ज़ालिमाना सज़ा है। अच्छा जी, अब इसमें एक है कि क्या कुफर इसके ऊपर कोई एतराज़ कर सकता है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर ज़िम्मी है गुस्ताख़ रसूल और उसने सिर्फ एक दफ़ा इर्तिकाब जुर्म किया है, तो फिर तो उसको कत्ल जो है वो नहीं किया जाएगा। अहनाफ का फतवा यही है। हाल ताज़ीरी सज़ा होगी। अलबत्ता किसी मुल्क में कानून बन जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब तक कानून नहीं बना तो कोई ताज़ीरी की सज़ा होगी, कत्ल नहीं किया जाएगा। तो जिस वक़्त ज़िम्मी को जो है वो तो पहले ही हम रियायत दे रहे हैं, तो फिर कुफर को तो इसके ऊपर एतराज़ हो नहीं सकता। मुसलमान के लिए हम सख्त हुक्म दे रहे हैं, तो ये तो हमारा आपस का मामला है, इस पर कुफर को एतराज़ करने की जो है वो कोई हक़ नहीं है। अलबत्ता जिस मुल्क के अंदर कानून बनाया जा चुका हो, तो फिर कानून की पासदारी जो है वो की जाएगी, फिर तौहीन रसालत के ऊपर इर्तिकाब किया जो है ना कत्ल किया जाएगा। तो लेकिन उसका एतराज़ इस्लाम के ऊपर नहीं आता, क्योंकि इस्लाम ने कोई ऐसा मुस्तकिल हुक्म नहीं दिया है कि ज़िम्मी एक दफ़ा भी तौहीन का इर्तिकाब करे तो उसको कत्ल किया जाए। और अगर ज़िम्मी बार बार मुर्तकिब हो रहा है तो फिर उसको जो है वो कत्ल का हुक्म दिया जाता है। लेकिन उसके बार बार तौहीन करने में वो गोया कि मुआशरे के अंदर एक शर फैला रहा है मुसलसल, तो जो मुसलसल शर फैला रहा है तो फिर तो उसका कत्ल किया जाना ही मुनासिब है। और ये तो मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर जो भी फसादी लोग ज़्यादा फसाद फैलाते हैं तो उनको कत्ल किया जाता है। ये तो मुख्तलिफ मुल्की कवानीन के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है, तो इसलिए कुफर जो है वो इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। बाकी रही ये बात कि ख़ुद मुसलमान कहलाने वाला जो है, जिस वक़्त वो मुर्तकब तौहीन हुआ है तो उसको जो कत्ल किया जाएगा तो वो क्यों। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुसलमानों के लिए हुक्म ये है कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों को अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है और नबी की बीवियाँ जो हैं वो उनकी माएँ हैं। तो ये बदबख्त जो है जो मुसलमान कहला रहा है, तो इसको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होने चाहिए थे, लेकिन ये उल्टा जो है वो उनकी तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। और जब तौहीन का मुर्तकिब हुआ है तो फिर हमारे नज़दीक वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। दायरा इस्लाम से खारिज हो गया तो वो मुर्तद हो गया, और मुर्तद की सज़ा जो है वो कत्ल, उसको मैं पहले दलाइल से साबित कर चुका हूँ कि वो कोई ज़ालिमाना सज़ा नहीं बनती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।